I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों का अभिवादन देता हूँ। First, I want to thank God for His grace and favor upon our life. सबसे पहले मैं परमेश्वर के उसके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। The grace and favor that He has shown us today, that we are in the midst of you, we are with you in the और celebration. उसका अनुग्रह ही है जिसके कारण जो है हम आज आपके बीच में हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we are more than excited. और हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। And it's such a honor and privilege for us to be with you, especially in this special day. हमारे लिए एक आदर की बात है कि आज एक विशेष दिन में जो है हम परिवार सहित आपके बीच में हो सके। So first, I want to thank our Lord Jesus Christ. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And so I also want to remember my Chidappa, Dr. J and Pastor Liz, and also our dear father, और मैं Pastor John, and our dear mother. Your experience is my age, but thank you for for having me here. It's such an honor to be here. Thank you so much. And also Pastor Tony and my dear sister Nimi and beautiful children. Thank you for having us here. You know, it is an accident for me. I accidentally ended up being a preacher today. और अकस्मात जो है मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और मुझे आज प्रचार करना पड़ा। I told Pastor that Pastor, I want to be a part of the church today. But और मैंने कहा कि पास्टर से कि मैं बस आपके कलीसिया में एक भाग के रूप में आके मैं अटेंड करना चाहता हूँ। But you know, our thoughts are not God's thoughts. पर हमारे जो विचार हैं परमेश्वर के विचार नहीं हैं। Amen. So I once again greet all of you in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार आप सभी लोग जय मसीह की बोलता हूँ। And I bring greetings from Chennai, Tamil Nadu, our Christ the Rock Ministries. क्राइस्ट द रॉक मिनिस्ट्रीज चेन्नई से जो है मैं आप सभी को लिए अभिवादन लेके आता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So I'm surprised that our God is such an amazing God. Every time He surprises us. और मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday I was just meditating upon the word of God. I was asking God, Lord, what should I speak? कल मैं जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और उससे पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे क्या वचन बांटना है। And today I saw Dr. J. He was talking about Joshua. और आज मैंने सुना कि हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर जे ने जो है यहोशू के बारे में बताया। And God has given me a word to speak about Caleb. और परमेश्वर ने मुझे केलब के बारे में बात करने के लिए वचन दिया। I was just sitting there. I was amazed of how the Spirit of God connects us. और मैं यहाँ बैठकर सोच रहा था कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा जो है हमें जोड़ती है। Hallelujah. हालेलुया। So when I was reading through the chapter the Lord has asked me to read through, और जैसे परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया और उन अध्यायों को जो मैं पढ़ रहा था, then I was seeing a lot of similarities between Caleb and our dear father and mother. They are ministerial celebration. और बहुत सी मैं ऐसी बातों को देख रहा था जो केलब और हमारे जो माता पिता हैं आत्मिक रूप में उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं बहुत सी समान बातों को मैं देखता हूं। So how are we going to celebrate their ministerial how do you call it, ministerial anniversary? Yeah, thanks. और किस प्रकार जो है उनकी सेवकाई की जो वर्षगांठ को हमको देख पा रहे हैं। How we can celebrate? किस प्रकार हम उसको मना सकते हैं। You know, the right way of celebrating their ministerial anniversary is learning from their journey. और इस चीज को सही तरीके से मनाने का क्या अर्थ है, हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या बातें हुई उसको देखकर हम सीख पाएं। If you don't learn from their journey, this anniversary, then we are not actually celebrating. यदि आप उनके इस जीवन काल से अगर आप कुछ सीखते नहीं हैं तो हम कोई भी इस तरह की वर्षगांठ नहीं मना सकते। So when I was meditating on the Lord opened my eyes to understand 4 important factors. और जब मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने जो है 4 ऐसी बातें मुझे बताई। Joshua chapter 14. Yeah. यहोशू उसका 14वां अध्याय लेंगे हम। We are going to read from verse 6. और 6 से लेकर हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 14 तक जो है हम अपनी बाइबल खोलेंगे और उसमें से पढ़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीन पे है, आप मेरे साथ इसको पढ़ें। आमीन। Yes. 6वां वचन। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में
परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने में भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने जो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनके इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपनी कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब यह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। Amen. Amen. Let's close our eyes. Father God, we commit this word into your holy hands. पिता परमेश्वर, इन वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। This is your word. ये तेरा वचन है, So you speak तो आप बोलें in and through us, Lord. हमसे तू बोले। You reveal whatever that we need to understand, my Father. हमें क्या समझना है उसको तू प्रभु प्रकाशन दे, Let your anointing and spirit rest upon this building. और इस पूरे भवन में तेरा अभिषेक बना रहे, Not by might, not by power, but by the Spirit, Lord. ना तो सामर्थ्य ना बल से प्रभु तेरी आत्मा से होने पाए। Lord, through this word, let your name alone be glorified. इस वचन के द्वारा केवल तेरा ही नाम ऊंचा उठाया In जाए, Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for your patience and thank you for reading together. और आपने सब एक साथ मिलकर पढ़ा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। My beloved, we were reading about Caleb, मैं जो है केलेब के बारे में पढ़ रहा था, and you would have definitely heard about him always, with Joshua. और हमेशा जो है कालेब का जब जिक्र होता है तो आप देखते हैं कि यहोशू के साथ उसका जिक्र किया जाता है। Actually, this Caleb, to give you a small history, he was always with Moses, always helping Moses. Joshua and Caleb always there with Aaron. कालेब और यहोशू जो है हमेशा दे हैं मूसा और हारून के साथ, आप उनको दिखते थे। Definitely the church is doing a lot of Bible studying, and you will definitely know this, where I don't want to go deeper. और बाइबल अध्ययन में जो है हमने बहुत कुछ इसको सीखा होगा, और मैं ज्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता। Hallelujah. हालेलुया। See, here, today we are celebrating this 32 years, right? 32 years of our parents' ministerial journey. हमें आत्मिक माता पिता के 32 साल को जो है जो सेवकाई है उसको हम यहाँ पर मना रहे हैं। I always say this, the world's most toughest job is a pastor's job. और मैं बताना चाहता हूं कि जो पासबानों का जो कार्य है बहुत ही ज्यादा एक कठिन कार्य है। Because you are standing between God and people. क्योंकि आप लोग और परमेश्वर के बीच में खड़े हैं। But it is the most blessed job. परंतु यही एक बहुत ही एक आशीषित कार्य भी है। More than I say the word job, it's a service. और जब कार्य का जिक्र करता हूं तो ये एक सेवा है। Hallelujah. हालेलुया। So it's 32 years of service. और ये 32 साल की सेवकाई है। Hallelujah. हालेलुया। So today I'm going to talk to you about Caleb, where we definitely understand the life and journey of our dear parents. और हम यहाँ पर कालेब के जीवन से देखेंगे और अपने आत्मिक माता पिता के जीवन को उसके साथ मिलाकर How Caleb was so successful even when he was 85 years old. कालेब 85 साल में भी कैसे उसने सफलता को प्राप्त की। I hope we all understood, through the verses that we read, what was happening, the scenario. और जब हमने वचन को पढ़ा तो मेरे को लगता है कि आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा
होगा कि पीछे क्या हो रहा है। In his 40 years, he was asking for a promised land. और 40 साल के उम्र में वो वायदे के देश को मांग रहा है, And he received it when he was 85 years. और उसने उसको 85 साल के उम्र में प्राप्त किया। And who's this Caleb? और ये कालेब कौन है? He is one of those 12 spies who went to this Canaan. और ये उन 12 जासूसों के जासूसों में से एक है जो कानान देश पर जासूसी करने गया था। And the Bible says everyone they gave a bad report back to the Israelites. और बाइबल बताती है कि जो भी जासूस वहां पर गए थे उनमें से सबने जो है नकारात्मक बातें लेके आए। But this Caleb did not give a bad report, but he was very positive. He was very optimistic. परंतु जो कालेब है वो जब वहां जासूसी करके आया तो सकारात्मक बातों को लेके आया। And these 12 spies, when they went to Canaan, they saw that land was blessed, but they had what do you call this, Anakim, the giants living there. और फिर हम अब देखते हैं, उसमें देखते हैं कि जो 12 जासूस वहां वायदे के देश में गए थे उन्होंने देखा कि वो देश तो आशीषित है परंतु वहां पे बहुत से दानव हैं, बड़े बड़े लोग हैं। So these giants can kill them easily. और उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़े दानव हैं और ये तो बड़ी आसानी से हमको मार डालेंगे। So when these 12 spies saw these giants can kill them easily, they were terrified. और जब इन 12 जासूसों ने देखा कि ये बड़े दानव हैं हमको मार डालेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए और डर गए थे। And when they came back, they were giving a lot of bad report that they saying that we cannot go there, we cannot overcome, we cannot conquer, we cannot be victorious. और जब वो वापस आए तो उन्होंने आके बोला कि नहीं हमें से तो बहुत मुश्किल है, हम उसको कहीं जीत पाएंगे, अगर वो हम जाएंगे तो हमको मार डालेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। And they said we are like grasshoppers in front of them, they are giants. उन्होंने कहा कि हम तो उनके सामने टिड्डों के समान हैं, वो तो बड़े बड़े दानव हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the same way, 32 years back, और उसी 32 साल पहले, in the same way 32 years back, 32 साल पहले when this ministry of Agra was given to our parents' hand, ये जो सेवकाई शुरू हुई और हमारे आत्मिक माता पिता के हाथ में दी गई, definitely there were giants in Agra. और उस वक्त सचमुच जो है आगरा में बहुत से ऐसे दानव थे। When I talk about giants, I'm not talking about the stature, the people. जब मैं दानव की बात करता हूं तो शारीरिक रूप में जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। Giants of poverty, और एक ऐसा दानव जो गरीबी का दानव, giants of demonic forces, और बहुत से दुष्ट आत्माओं का दानव, giants of lack of knowledge, और बुद्धि की कमी का दानव। hallelujah, हालेलुया। giants of idol worship, if I can mention, या बहुत से मूर्ति पूजा का दानव। hallelujah. There may be, maybe many of his friends or family would have told him, why don't you just go back to Tamil Nadu and settle there, live happily. और रिश्तेदारों ने, मित्रों ने कहा होगा कि तुम आगरा में क्यों, दक्षिण भारत में आ जाओ, वहां पर आप सेवा करो। Hallelujah. हालेलुया। Maybe there were so many, negative discouragements or negative advices can be maybe given to them. I don't और know. उनको निराशा की बातें बहुत सुननी पड़ी होगी। Hallelujah. हालेलुया। But Caleb was very, very faithful and he was courageous. परंतु यहां पर हम देखते हैं कालेब जो है विश्वासी था और वो उसके अंदर सामर्थ्य थी। He was not worried about the giants. वो इन दानवों को देखकर नहीं डरा। He was only focusing on the promise the Lord has given them. वो केवल उस वायदे को देख रहा था जो परमेश्वर ने उसे दी थी। He was not disturbed or distracted because of the present challenges. और वो इन सब जो आसपास में जो बातें घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर वो कभी परेशान और निराश नहीं हुआ। But he was holding on to the vision and the promise God has given him. परंतु वो हमेशा परमेश्वर ने जो वायदा दिया है उसको वो उसे पकड़े रहा। He said, we can be victorious because we have the God of Israel with us. उसने बोला कि हम जयवंत पाएंगे, हम जय को पाएंगे क्योंकि इज़राइल का प्रभु हमारे साथ है। Even though all these people were talking negative that we cannot be victorious, but he was very much determined that we can be victorious. आसपास के लोग उसे बोल रहे थे नहीं हम नहीं जीत पाएंगे, परंतु वो हमेशा कह रहा था कि नहीं हम जीत जाएंगे। Even at the age of 85 he received the blessings. और 85 साल के उम्र में उसने उस आशीष को प्राप्त की। So I'm going to
I'm going to discuss with you, I'm going to share with you the 4 important things that Caleb was possessing that gave him this victory. और मैं इसी अध्याय से 4 ऐसी बातें बताऊंगा कि किस प्रकार कालेब ने जो है इसको जय को प्राप्त किया। For Caleb it was 45 years before. कालेब के लिए हो सकता है 45 साल पहले। For our parents it was 32 years before. हमारे माता पिता के लिए 32 साल पहले। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। Little louder. Hallelujah. जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। Today we are going to learn from their journey how they are successful today. और हम उनकी यात्रा से जो है हम सीखेंगे किस प्रकार उन्होंने सफलता को And प्राप्त we are किया। going to celebrate that today. और उसको हम आज मनाएंगे। How many of you want to be successful today? कितने लोग सफलता को प्राप्त करना चाहते How many हैं? of you want to receive the promise of God today? कितने लोग परमेश्वर के वायदे को पाना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That is what I'm going to share with you. और इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Today आज we are looking back the 32 years of our parents. हम देखते हैं 32 साल पहले कैसी सेवकाई शुरू So हुई। when I was meditating on that, जब मैं उन बातों को मनन कर रहा था, God was talking about these 4 similarities between our parents and Caleb. और ये 4 समानताएं जो हमारे माता पिता और कालेब के जीवन में उसे हम देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What is the secret of their success today of 32 years? आज उनकी सफलता का क्या सीक्रेट है, रहस्य है? Number 1, सबसे पहला in the same chapter, उसी अध्याय में verse 9, 9वें वचन में the Bible says, बाइबल बताती है, Moses swore on the day, saying, Surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वहां सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। Amen. Hallelujah. Amen. Number 1, सबसे पहला, the first thing that we are learning today, सबसे पहला बिंदु हम यहां सुनेंगे। Caleb followed the Lord with whole heart. कालेब जो है परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चला। And 32 years, our parents, they were completely, they followed the Lord whole heart. उसी प्रकार हमारे जो आत्मिक माता पिता हैं 32 साल परमेश्वर के पीछे चले। What is the meaning of following wholeheartedly? पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे होने का क्या मतलब है? What is the meaning of following God with entire heart? अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे होने का क्या मतलब है? I'll tell you what is that. मैं बताता हूं क्या है। It is following God without any doubt. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पीछे बिना कोई संदेह किए चलते रहना। It is following God without a double-mindedness. बिना किसी संदेह के, बिना दो विचार के हम परमेश्वर के पीछे हो लेना। James chapter 1 verse 8 says, a double-minded man is unstable in all his ways. याकूब में इस प्रकार लिखा है, दो चित्ता मन करने वाला कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Imagine if Caleb was double-minded. अगर सोच के देखिए, अगर कालेब जो है दो चित्ता यानी दो विचार रखता, He would be thinking about going back to Egypt. अगर वो सोचता कि नहीं मैं वापस मिस्र चले जाऊं। If our parents were double-minded before 32 years, यदि हमारे आत्मिक माता पिता अगर वो भी दो चित्ता दो विचार रखते, they would be thinking to go back to Tamil Nadu. अगर वो ये सोचते कि नहीं मुझे तमिलनाडु चले जाना चाहिए, But they decided, they determined that they will, with whole heart, they will do the ministry here. परंतु उन्होंने जो है पूरे हृदय से ये बात ठान ली कि वो यहां पर रहकर उसकी सेवकाई करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's give them a clap of आइए उनके लिए हम जोर से ताली बजाएं। Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। Matthew chapter 6 verse 24 says, मत्ती 6 के 24 में ऐसा लिखा है, Jesus said this, यीशु मसीह ने कहा, no one can serve two masters. कोई भी दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। A double-minded person will always serve two masters. और जो दो चित्ता व्यक्ति है हमेशा दो स्वामी की सेवा करता है। Hallelujah. हालेलुया। But all the Israelites were serving two masters. सारे इजरायली लोग भी जो है दो स्वामी की सेवा कर रहे थे। They also want to go to Canaan, वो वायदे के देश कानान में भी जाना चाहते थे, but their mind is always in Egypt. परंतु उनका मन हमेशा मिस्र में ही लगा रहता था। That is not called a whole heart.
That is not called a whole heart. और इसका मतलब पूरा हृदय से नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you here are following God with your whole heart? कितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और कह सकते हैं कि मैं पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे हो रहा The हूं? Lord is talking to you today. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा If है। you want to receive the promise God has given you in your life, यदि परमेश्वर ने जो वायदे आपके जीवन के लिए दिया है उसको आप पाना चाहते हैं, God has a Canaan in your life where you can go. और परमेश्वर Canaan. जो है आपके लिए एक कानान देश तैयार करके रखा है जहां आपको जाना है। If you want to receive the blessings from God, यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते if हैं, you want God to fulfill the promise in your life, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा हो, the first thing that we are learning today, तो सबसे पहली बात, do not be double-minded. दो चित्ता मन ना रखें। You must have only Jesus as your God. आपके पास केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपका प्रभु होना चाहिए। He is only your heavenly Father and He is more than a mother to you. वो ही जो है आपका पिता है और आपकी माता है। Sometimes when circumstances changes, बहुत सी बार जब परिस्थिति बदल जाती हैं, when we go through some tough situations, बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, then we think about other things. हम बहुत से और बातों को सोचते हैं, We get into doubt. हम संदेह में पड़ जाते हैं। Do really Jesus love me? Do really Jesus, He answers my prayers? और हम सोचते हैं कि क्या सचमुच यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? क्या सचमुच मेरी प्रार्थना को सुनता है? Following Jesus wholehearted, you know what does that mean? यीशु मसीह को पूरे हृदय से उसके अनुकरण करने का क्या मतलब है? Listen to me very carefully. ध्यान से सुनिएगा। Whether God answers me or not, भले ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है या नहीं, He will still be my God. वो हमेशा मेरा प्रभु रहेगा। That is a wholehearted. वो कहते हैं उसके पीछे चलना पूरे हृदय से। 45 years of wholehearted life Caleb had. और कालेब के जीवन में 45 साल तक वो परमेश्वर के पीछे होता रहा। And our parents 32 years of wholeheartedly doing the work for और God. हमारे आत्मिक माता पिता ने 32 साल जो है पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चले। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरी बात, overcoming fear. डर पर जय को प्राप्त करना। The reports all these spies brought back, और जितने भी जासूस अपने रिपोर्ट लेके आए थे, they said the giants were big and they will kill us. उन्होंने कहा कि वो तो दानव है, वो हमें मार डालेंगे। It was not a myth, it's true. और ये कोई ऐसी बनी बनाई कहानी नहीं है, ये वाकई में ये हुआ। Giants are real. और दानव सचमुच हैं, पाए जाते हैं। Demonic forces are real. और जो दुष्ट आत्माएं हैं पाई जाती हैं। Challenges are real. और कठिनाइयां हैं, It's वो not a myth, वास्तविकता है। it's not a myth, it's true. ये ऐसे ही बनी बनाई कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। So when the Bible says in Numbers chapter 13 and 14, और गिनती उसके 13 और 14 में जब हम देखते हैं, when these spies gave back this report to the Israelites, the Bible says the whole congregation sat and they were crying like a baby. और जब ये रिपोर्ट लेकर इजरायलियों के पास लेके आए, तो इजरायलियों ने जब सुना तो वो रोने लगे और वो डर गए थे। And they were crying and they said, why can't we go back to Egypt? और वो इतना डर गए थे, रो रहे थे, बोल रहे थे कि हम वापस मिस्र ही चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, sometimes the devil will use fear against you to manipulate you. कई बार जो है शैतान आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए डर का इस्तेमाल करता You would है। have decided something for Jesus Christ. You have decided something for Jesus Christ. आपने कुछ निर्णय लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा करूंगा। You have trusted Jesus Christ and taken a step forward. यीशु मसीह पर भरोसा करके आपने एक कदम आगे बढ़ाया होगा। But the devil will use this fear in our hearts. परंतु जो शैतान है वो डर का इस्तेमाल करता He है will use the situation around us. और आपकी परिस्थिति को देखकर वो कुछ काम करता है। Maybe your friends or your family, your society, they may bring that fear in your heart. और वो क्या करता है, आपके मित्र हैं, आपके घर के जो सदस्य हैं, रिश्तेदारों को रखकर आपके अंदर डर को उत्पन्न करता Oh, है। you going to Jesus Christ? अरे तू यीशु मसीह के पीछे होगा, You going behind Jesus Christ? तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। They will talk about lot of this negative thing. They will bring a lot of fear. और यही लोग आपके जीवन में ऐसी बातें, नकारात्मक बातें बोलकर
डर को उत्पन्न करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whole congregation was crying. पूरा जो मंडली है वहां पर वो रो रहे थे, But the Bible says परंतु बाइबल हमें बताती है Caleb stood in front of them कालेब जो है उनसे अलग हटकर खड़ा हुआ and he said, "We can overcome this giants because the Lord of Israel is with us." और उसने जो है बड़े हियाव के साथ बोला कि इन दानों पर हम विजय को प्राप्त करेंगे क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर हमारे साथ है। See, this fear was not dictating Caleb. और ये जो डर है वो कालेब को अपनी ओर नहीं खींच रहा था, This fear was not controlling Caleb. और ये जो डर है कालेब पर भावी नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। 32 years back, 32 साल पहले our parents would have had some challenges. और हमारे आत्मिक माता पिता ने जो है बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया होगा, They would have got some threatenings. और उनको शायद किसी ने धमकी भी दी होगी, You are doing ministry here. अरे तू यहाँ सेवकाई कर रहा है, They would have received some threatenings. और उन्होंने बहुत सी ऐसी धमकियां सुनी होंगी, Even the devil would have come in front of them in some way and they would have threatened them. और शैतान भी उनके सामने आकर उसने कहा होगा, उनको डराया होगा। Hallelujah. हालेलुया। But why are they sitting here 32 years? आज क्यों 32 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं? You know why? आपको मालूम है क्यों? Because they overcame fear. क्योंकि उन्होंने डर पर जय को प्राप्त किया है। How? कैसे? Hallelujah. कैसे? The Bible says in Genesis chapter 15 verse 1, बाइबल उत्पत्ति 15 के पहले वचन में ये बताती है, God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, He said, "Do not be afraid." उसने कहा कि तुम डर मत। Hallelujah. हालेलुया। Today God is telling you, church, do not be afraid. आज कलीसिया आपको बता, परमेश्वर बोल रहा है मत डर। What are you afraid about? किस बात के लिए आपको डर है? What are you afraid about? आप किस बात के लिए डर रहे Maybe you हैं? are sick and you are afraid about it. यदि आप बीमार हैं और आप उसके अंदर डर है, Maybe your financial difficulties, you are afraid about it. आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए आपके अंदर डर है, Maybe someone is threatening you, you are afraid about कोई it. आपको धमकी दे रहा है इसलिए आप डरे हुए हैं। There is something that is creating that fear in your heart. कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर डर को उत्पन्न करती But है, our heavenly Father is telling you, do not be afraid. परंतु हमारा पिता परमेश्वर कहता है मत डर। I am your shield and I am your great reward. मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा प्रतिफल हूं, He is your shield. और वो ही आपकी ढाल है। Like a hen gathers his chickens, और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जो है छिपा कर our रखती heavenly है, Father will be a shield for you. हमारा पिता जो है हमारे लिए एक ढाल के समान हमें बचा कर रखता है। The God of Abraham is your God today. और वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर वो आपका परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said in Matthew chapter 28 verse 19 and 20, मत्ती उसका 28 और 19 और 20 में यीशु मसीह कहते हैं, before he was taken up to heaven, वो यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में उठाए जाने से पहले he said, "Go into all the world and preach my gospel." उसने कहा कि पूरे संसार भर में जाओ और मेरे सुसमाचार को सुनाओ। And you know what he said in the last? उसके बाद उसने क्या कहा? I am with you always, मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ, even to the end of the ages. अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Your father might die, तुम्हारा पिता मर सकता your है, parents might die, तुम्हारे माता पिता मर but सकते हैं, Jesus will be with you to the यीशु end of your मसीह ages. अंत तक जो है आपके साथ बना So रहेगा। do not be afraid for whatever happens in your इसलिए life. चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए ना डरें। Jesus is always with you wherever you go. यहाँ कहीं भी आप जाएंगे यीशु मसीह आपके साथ है। When you're walking on the road, जब आप रास्ते में चल रहे when हैं, you're at your home, आप अपने घर पे बैठे when you're हैं, doing your business, जब अपने व्यवसाय को कर रहे when हैं, you're walking in your office, जब आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, Jesus is always with you. यीशु मसीह हमेशा आपके साथ He है, is with your generation. He is with your children. और आपकी पीढ़ी पीढ़ी के साथ है, आपके बच्चों के साथ है। Number 2, दूसरी बात, overcoming fear. डर पर जय प्राप्त Whatever करना। you have fear about, आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डर हो, keep your fear here and leave after the church. और अपने डर को यहां पर रख दें और उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। Number 3, तीसरी बात, faith and patience. विश्वास और धीरज। Hallelujah. हालेलुया। They were able to see 32 years of this success in Victory churches. और 32 साल से यहां पर सफलता को वो देख पा रहे हैं। Number 1, सबसे पहली because they are following the Lord wholeheartedly. सबसे पहली बात कि हमने ये देखा कि वो परमेश्वर
का पूरे हृदय से अनुकरण कर रहे हैं। Number 2, they overcame the fear. दूसरी बात, उन्होंने डर पर जय प्राप्त किया। And number 3, तीसरी बात, their faith and patience took them today. उनका विश्वास और धीरज यहां तक लेके आया है। Hallelujah. हालेलुया। Caleb waited 45 years to receive his promised land. कालेब ने 45 साल इंतजार किया उस वायदे के देश को प्राप्त करने के लिए। When we pray to God, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते sometimes हैं, God doesn't answer, maybe the answers are delayed. कभी कभार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, देर हो जाती है। And naturally what happens is we stop praying. और क्या होता है इस वक्त कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। We give up. हम सोचते हैं नहीं, अब छोड़ो। We say, Lord, I'm asking you so many times, you're not answering me. Okay, let me stop praying. कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु मैं इतनी बार मैंने इसमें प्रार्थना की और तूने कभी जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं इस बात को छोड़ देता हूं। But a person with faith and patience never gives up. परंतु जो व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास है और धीरज है, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। My beloved, what are you praying for today? प्रिय भाइयों बहनों, आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? You're annoyed because you're waiting for a day or a week or a month. हो सकता है कि एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीनों के लिए आप इंतजार कर रहे हो। Abraham waited for so many years, you know that. आपको मालूम है अब्राहम ने कितने साल तक इंतजार किया? Patiently. धीरज के साथ। Caleb waited 45 years. कालेब ने 45 साल इंतजार किया। Hallelujah. हालेलुया। Imagine this, Agra is a mountain. आप सोच के देखिए, आगरा एक बहुत बड़ा पर्वत है। Mountain is not an easy place for you to carve. It cannot break. पर्वत को आप वैसे ही नहीं तोड़ सकते। But today I believe in the Spirit and I proclaim that this mountain is completely given in your hands. आमेन। आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो है आपके हाथों में ये पर्वत दे दिया है। In the same way it was given to Caleb after 45 years. In this year of 32 years, I believe the Lord is giving the complete this Agra into your hands. आमेन। 45 साल में जो है परमेश्वर ने कालेब को वो पर्वत दे दिया था, उसी प्रकार आज 32 साल हो चुके हैं, परमेश्वर ने ये आगरा शहर आपको दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Because of their faith and patience, they are able to see 32 years. उनके विश्वास और धीरज के कारण 32 साल उन्होंने दिखाया है। When I asked you, how many of you want to receive the promise? How many of you want to see success? Almost everybody raise your hands. और जब मैंने ये प्रश्न पूछा था कितने लोग सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के वायदों को पाना चाहते हैं, तो आप में से सभी लोगों ने अपने हाथों को उठाया। So we have to learn that हमें एक चीज सीखनी है, you need little more faith and patience. आपके अंदर विश्वास की और धीरज की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Can you keep your hand in your heart क्या आप अपने हाथ को अपने हृदय में रख सकते हैं and tell Jesus Christ, और कहें प्रभु यीशु मसीह से, Lord, give me more faith. मुझे कहें प्रभु मुझे विश्वास दे, Increase my faith मेरे विश्वास को बढ़ा, and give me more patience. मुझे धीरज दे। Hallelujah. Yes. You need to pray for this every day. हर एक दिन आपको ये प्रार्थना करनी है। Not just praying for a house or not just praying for a material blessing. We need to pray for the increase of your faith and patience. आप अपने सांसारिक बातों के लिए, घर के लिए, इन सब के लिए प्रार्थना ना करें, परंतु प्रार्थना ये करें कि प्रभु मुझे विश्वास दे और धीरज दे। I would like to read a verse from Hebrews chapter 6. इब्रानी उसके 6 अध्याय से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, Verses 12 and 15. और 12 और 15। Hebrews chapter 6 verse 12. We do not want you to become lazy but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Your faith and your patience will help you to inherit the promise of God. आपका विश्वास और आपका धीरज जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा आपके जीवन में पूरा करेगा। And verse 15 says, and so after waiting patiently, Abraham received what was promised. और 15 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात
प्राप्त की अब्राहम ने। Hallelujah. हालेलुया। So your faith and your patience will help you to inherit. आपका विश्वास और धीरज आपके जीवन में उस सफलता को लेके आएगा। Number 4. चौथी बात, What made this our parents and Pastor John and his family different? और कौन सी ऐसी बात है जो हमारे आत्मिक माता पिता और उनका परिवार जो है कुछ अलग से हटकर Pastor है? Tony, yeah, Pastor Tony and family. Sorry. पास्टर टोनी उनका परिवार किस बात से अलग हैं? Hallelujah. हालेलुया। Please turn your Bible to Numbers chapter 14 verse 24. और आइए गिनती उसका Numbers chapter 14 verse 24. गिनती 14 का 24 हम देखेंगे। Numbers chapter 14 verse 24. गिनती 14 का 24। The Bible says, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Finally, number 4. चौथी आखिरी बात, What made them see this 32 years? क्या ये 32 साल में उन्होंने देखा? What made Caleb see that 85 years? और कालेब ने 85 साल में क्या देखा? Different spirit. एक और प्रकार की आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। It's not a negative spirit. वो नकारात्मक आत्मा नहीं, It is a different attitude. वो एक अलग सा व्यवहार है। It's a different attitude altogether. वो सब मिलाकर एक अलग सा व्यवहार है। What is this attitude? और ये किस प्रकार का व्यवहार है? Attitude means how you see things. व्यवहार का मतलब है आप किस तरह इन बातों को देखते हैं। Can I please have that bottle? What do you see here? आप यहां पर क्या देखते हैं बताइए? बोतल है और उसमें क्या है? पानी है। और कुछ? और क्या देखते हैं? बोतल के अंदर आधा बोतल पानी है या आधे से कम पानी है। Okay. So he's selling is little water. Okay. This is called attitude. और इसे कहते हैं व्यवहार। Hallelujah. हालेलुया। I say this bottle is half empty. मैं अगर कहूं कि ये बोतल आधा खाली है, But my brother says, no, this is half full. और मेरा भाई कहता है कि नहीं, आधा इसमें भरा हुआ है। Who's right? बताइए कौन सही है? Both are right. दोनों Hallelujah. सही है। Both are right. दोनों सही है। But what I am focusing on, परंतु मैं किस बात पर अपना केंद्र लगा रहा हूं? the empty part of the bottle. क्या मैं वो खाली स्थान बोतल में है उस पर ज्यादा केंद्रित हूं? Let us consider the empty part as giants, हम देखेंगे कि जो खाली स्थान है वो दानव है, problems, चिंताएं हैं, difficulties, परेशानियां हैं, challenges. अलग अलग परिस्थिति है। But the part where the water is, परंतु जो पानी जिसमें है, let's consider that as God being with us. और उसको हम देखेंगे परमेश्वर हमारे साथ है, The grace God has given us, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, the wisdom and knowledge God has जो given us, बुद्धि और ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया the है, strength God has given us, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, the skill God has given us, जो स्किल मुझे दिया है परमेश्वर ने। whatever we have in life अब क्या क्या बातें हमारे जीवन में है? is the water that we have. यही है जो पानी जो है वो सब कुछ हमारे जीवन में है। But the nature of a human being is, परंतु स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें, we are mostly focusing on the empty part of the bottle. हम बोतल के जो खाली हिस्सा है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। All the other spies, they were focusing on the empty part of the bottle. और जितने भी जासूस थे वो खाली बोतल कितना खाली है उसे देख रहे थे। They were saying giants were there. वो बोल रहे थे कि वहां पर दानव है। But Caleb was focusing on
the part where the water is. परंतु कालेब उस बोतल में जितना पानी है उसे देख रहा था। He was not looking at the empty part. वो खाली स्थान को नहीं देख रहा था, He was not looking at what cannot be done. और वो क्या नहीं कर सकते उसको नहीं देख रहा था, He was focusing on what can be done. और वो यही उस बात पर केंद्रित था कि क्या कर सकते हैं। He said, God is with me. वो कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ He है, had a vision on his mind. और उसके अंदर एक दर्शन था। That is a different spirit. ये इसे बोलते हैं एक अलग प्रकार की आत्मा। What is your attitude today? Thank you. आपका क्या व्यवहार है प्रियो? What is your attitude today? आपका क्या व्यवहार है प्रियो? What are you focusing on आप today? किस बात पर आप केंद्रित हैं? What is your vision today? आपका क्या दर्शन है? You know, I'll tell you, a person without a vision is like a ship without a pilot. और एक व्यक्ति जो बिना दर्शन के जीता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसी नाव है जिसमें कोई चालक नहीं है, Or maybe a ship without a destination. और कोई एक ऐसी नाव जो उसको मालूम ही नहीं है उसे कहां जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Imagine a ship without a destination. आप सोच के देख लिए एक ऐसी नाव उसको मालूम ही नहीं है उसे कहां जाना है, However the wind blows, the ship moves. और वो जो नाव है जैसे जहां लहरें बह जा रही हैं, जहां हवा बह रही है वहीं चला जाती है, There is no control over the movement of the ship. और उस नाव में कोई कंट्रोल नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Whether the storm comes in, अगर वहां पर आंधी आ जाती है, whether the cyclone comes in, तूफान आ जाते हैं, the ship still moves towards the destination. अगर वो जो नाव है अपने डेस्टिनेशन जिस स्थान उसको जाना है वहां अगर वो जाती है, But a person without a vision परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दर्शन ही नहीं is है, like a ship without a destination. वो एक ऐसा व्यक्ति है कि ऐसे नाव जिसको जहां पहुंचना उसका कुछ मालूम ही नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The wind controls the ship, not the pilot. अब यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर एक वो ऐसी नाव है जिसको तूफान चला रहा है, ना कि कोई चालक। Hallelujah. हालेलुया। Caleb had a different spirit. परंतु कालेब के पास एक अलग सी आत्मा थी। What is the different spirit? वो अलग प्रकार की आत्मा क्या थी? It is different attitude. वो उसके अंदर एक अलग सा व्यवहार था। You know why lion is called the king of the jungle? आपको मालूम है क्यों शेर को जंगल का राजा बोला जाता है? Lion is not the fastest animal to run. और शेर जो है तेज दौड़ने वाला जानवर नहीं है, And that is not the biggest one. और ना ही सबसे बड़ा जानवर है, Lion is not the powerful one. और वो ना ही बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य It's शक्तिशाली not है, the tallest. और वो ज्यादा लंबा भी नहीं है। But why it's called the lion, the king of the jungle? क्यों शेर को जो है जंगल का राजा बोला जाता है? Hallelujah. हालेलुया। It is the attitude of the lion. क्योंकि उसका व्यवहार बताती है। When the lion looks at the elephant, जब एक शेर हाथी को देखता है, imagine suddenly an elephant comes inside. Now what you will do? और अगर अब सोच के देखिए अचानक एक हाथी सामने आ गया, We will run that side, right? और आप लोग भाग जाएंगे। Yes, we will definitely get scared. हम डर जाएंगे और भागेंगे। I will not go and stand before lion like that. और मैं हाथी के सामने बिना डरे खड़ा तो नहीं हो सकता, I will definitely be scared. और क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। But a lion is smaller than an elephant. परंतु देखते हैं शेर उस हाथी से बहुत ही छोटा एक जानवर है। I look at the elephant as a giant. मैं जो है उस हाथी को एक दानव के रूप में देखता हूं, But the lion looks at the elephant as a burger. और परंतु जो शेर है उस इतने बड़े हाथी को एक बर्गर के रूप में देखता है। Hallelujah. That is called a different spirit. और इसे बोलते हैं अलग प्रकार की आत्मा। Caleb had the different spirit. कालेब के अंदर अलग प्रकार की आत्मा थी। A person of vision is a person who does not walk by sight. He walks by faith. और एक जिस व्यक्ति के अंदर दर्शन है, वो जो उसे आंखों से दिखता है उस पे नहीं चलता, परंतु विश्वास से चलता है। A person of vision is a person who stands against the
public majority opinion. और एक दर्शन को पाया हुआ व्यक्ति जो है, जो लोग कहते हैं उनके विपरीत वो चलता है। The Bible says 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथी 1:7 में बाइबल ये बताती है, For God has not given us the spirit of fear, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा but नहीं He दी has है, given us the spirit of power, love and sound mind. उसने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम मन दिया है। What kind of a spirit you have किस today? प्रकार की आत्मा आपके अंदर है? Hello? हेलो, I'm finishing now. You can smile. आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, मैं अभी खत्म करने वाला हूं। How many of you, what kind of a spirit you carry today? किस प्रकार की आत्मा आपके अंदर है? Spirit of fear? आपके अंदर भय है? Spirit of doubt? आपके अंदर संदेह है? No, God has blessed you with the spirit of sound mind, love and power. परमेश्वर ने जो है आपके अंदर संयम मन और प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। Hallelujah. हालेलुया। All glory to God. सब परमेश्वर को महिमा मिले। 4 things. 4 बातें What we learn from our parents' life. हम अपने माता पिता से क्या सीखते हैं? Hallelujah. हालेलुया। What is number 1? सबसे पहला क्या है बोलिए? If you tell, I'll leave you. अगर आप बताएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। Number 1. सबसे पहला, फॉलो या फॉलो Wholehearted. जीसस। किस प्रकार अनुकरण करना है? Follow wholeheartedly. पूरे हृदय से उसका अनुकरण करना है। Number 2. दूसरी बात, Overcome your fear. अपने भय पर जय प्राप्त करें। Number 3. तीसरी बात, Your faith and patience matters a lot. आपका विश्वास और आपका धीरज मजबूत होना And चाहिए। finally, you should have a different spirit, the spirit of God. और चौथा जो है, आपके पास अलग प्रकार की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा होनी If चाहिए। you want to be successful, अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, it cannot happen by might, वो आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा, cannot happen by power, आपके आपके शक्ति से नहीं होगा, it can only happen by the spirit of God. केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you can say that this word is for me? कितने लोग कह सकते हैं कि आज का वचन मेरे लिए था? This word is for me. कितने लोग कह सकते हैं कि ये वचन मेरे लिए था? Yes. Let us imitate, let us follow. आइए हम उसका अनुकरण करें, उसके पीछे हो लें। And once again, I want to congratulate our dear parents. फिर से एक बार मैं अपने माता पिता का जो है अभिवादन करना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, This बधाई देना 32 चाहता हूँ। years of victorious journey. 32 साल जो है परमेश्वर ने जो जय की यात्रा जी है, And I'm honored again to be a part of this celebration. और मुझे बहुत ही मैं आदर लगता है जब मैं इस पे भाग ले सकूं। Thank you for having me. Thank you, Pastor Tony. Thank you for having me. और आपने जो है मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। May the Lord bless you abundantly प्रभु आपको बहुतायत से and आशीष दे, fulfill all your desires and vision. आपके सारे मनोकामनाओं को पूरा करे, And I दर्शन को पूरा definitely करे। believe and proclaim that this place is very small. God is और- going to expand. मैं विश्वास करता हूं कि ये जो स्थान है बहुत ही छोटा है, प्रभु आपको बड़ा स्थान देगा। The mountain belongs to you. और ये जो पर्वत है आपके लिए है। Amen. आमेन। God bless you and bless you. Thank you so much. प्रभु आपको आशीष दे, आशीष बनाए रखे। आमेन।